Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we are going to share how we spent our first day in Langkawi, Malaysia. हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और पल्लवी को नींद आ रही है। पल्लवी ने तो मुझसे लड़ाई भी कर ली है। चलो अब मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। Here we have just arrived at Bhopal airport because our Malaysia trip starts from here. Our journey is from Bhopal to Langkawi, but we have a layover in Bangalore. Okay guys, look where we are, finally in the plane and super excited for our Malaysia trip. After almost 1.5 hours in the air, we have finally landed at Bangalore airport. And here we have to go from Terminal 1 to Terminal 2 for our connecting flight to Langkawi. And the shuttle takes 10 to 15 minutes to reach here, and here we come. Guys, look at this airport. I had no idea Bangalore airport was this stunning. Just look at these visuals. Seriously, the design is so sleek and it's almost like a luxury mall. And so clean and spacious. Who knew an airport could be this pretty? Okay guys, it's go time. We are at international departures, time for immigration, security screening and all the pre-flight checks before we can go to Langkawi. And airport security screening is always the ultimate test of my packing skills. Did I organize properly? Let's find out. And here after some time we are officially ready to board. Just look at that gate. Our flight to paradise is waiting for us. यहाँ पर अभी बज रहे हैं सुबह के 4 एंड इंडिया का जो टाइमिंग है वो मलेशिया से 2.5 घंटे पीछे है एंड मलेशिया हम पहुँचेंगे 10:30 इन द मॉर्निंग एंड हमारे पास पूरा दिन होगा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू स्काई आपको दिखाई दे रहा है ये है लंकावी का एंड फ्लाइट ओशन के ऊपर फ्लाई कर रही है एंड फाइनली हम लंकावी पहुँच गए एंड यहाँ पर हमको पहुँचने में लगे हैं फिक्स 4.5 आवर्स। एंड मलेशिया का ये ब्यूटीफुल सा आइलैंड जिसका नाम लंकावी है ये पूरा का पूरा ग्रीन है एज यू कैन सी इट इन द वीडियो। If you don't know, let me tell you that Malaysia is a visa-free country for Indians and एयरपोर्ट पर जो भी इमिग्रेशन का काम होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम बढ़ रहे हैं होटल की तरफ। ये कुछ नज़ारा था एयरपोर्ट के जस्ट बाहर का। यहाँ पर हमने कैब बुक कर दी है एंड अब हम उसका वेट कर रहे हैं एंड कैब हमने ग्रैब ऐप से बुक करी है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है एंड बहुत ही कम टाइम लगता है एंड अफोर्डेबल भी है। देखिए अब हमारा कैब ड्राइवर वेट कर रहा है एंड यहाँ पर अब हम सामान चढ़ाकर बढ़ते हैं होटल की तरफ। We are here in Langkawi for 3 whole days and I can't wait to show you everything. Just look at these views outside. After some time, we have reached our home for the next 3 days, the Frangipani Beach Resort. We have booked a beach view villa here and just wait till you see how this place merges with nature. यह रिजॉर्ट बहुत ग्रीन था, यहाँ पे
बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स थे एंड सामने बीच था एंड सी वेव्स की आवाज़ सुनकर तो मज़ा ही आ रहा था। बढ़ते हैं हम अपने विला की तरफ एंड आपको देते हैं विला का व्यू। After some much needed relaxation and freshening up, we are finally heading out to explore Langkawi. First on our itinerary is the famous Eagle Square and some city sightseeing and some shopping. अभी हमने ग्रैब ऐप पर कैब को बुक करवा दिया है एंड यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाने वाले हैं लंच करने के लिए क्योंकि अभी दिन के 4 बजे हैं एंड लगभग 12 बजे के आसपास हम रिज़ॉर्ट में आए थे एंड तब से हमने लंच नहीं किया। रिज़ॉर्ट में लंच के लिए वेजिटेरियन ऑप्शंस में बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल थे एंड इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाकर ही लंच करेंगे। एंड लंच करने के लिए हम यहाँ आए हैं एशियन तड़का पर। यहाँ पर हमने रोटी एंड दाल ही ऑर्डर की थी बट दाल रेडीमेड टाइप की लगी हमको, कुछ खास नहीं थी। लंच करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर शॉप्स को चेक करने, देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है एंड किस प्राइस रेंज में मिलता है। तो हम आए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। Let me tell you one of Langkawi's biggest perks. It is a duty-free island. That means no taxes on most products, which can lead to some great deals. But here is what you should know. Not everything is cheaper than India. Some products are actually more expensive here. You really need to compare prices based on what you are looking for. For example, alcohol, wine is significantly cheaper here, sometimes almost half the price you would pay. Same goes for imported chocolates and perfumes. You can find good price for these products. Now we are going to Eagle Square, the most famous landmark in Langkawi. This massive 12-meter tall eagle statue is not just for show, it's actually a symbol of the island's name. Lang means eagle in Malay and Kavi means reddish brown, which refers to the colors of eagles found here. So basically Langkawi is equal to island of the reddish brown eagle. And I will show you eagles in our next vlog.
Guys, here are two pro tips for you. Pro tip number 1: come before 9 am to avoid crowds and get that perfect sunrise shot with the eagle taking flight over the Andaman Sea. And pro tip number 2: for magical photos, stand on the western jetty at golden hour. You will get the eagle backlit by sunset with the sea sparkling behind it. यह ईगल स्टैचू अंडमान सी से घिरा हुआ है एंड यहाँ पर खड़े होने पर बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस जगह पे जाकर मुझे सच में बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर समुद्र भी था, ठंडी ठंडी हवाएं भी थी एंड बारिश जैसा मौसम भी था। जिस दिन हम गए थे यहाँ पर तेज़ धूप नहीं थी, उल्टा बारिश होने वाली थी। और हम यहाँ पर गए थे जून मंथ में। अगर आपको भी ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं है, टैनिंग अच्छी नहीं लगती, तो आप भी ऐसे मौसम में जा सकते हैं। इस टाइम पर यहाँ पर बारिशें ही होती हैं। अच्छे से टाइम स्पेंड करके हम आ जाते हैं बाहर की तरफ। थोड़ा वॉक करते हुए हम मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे और बाहर आकर यह हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया था एंड काफ़ी ग्रीनरी, क्लीनलीनेस आपको देखने को मिलती है। कुछ समय बाद घूमते घूमते यहाँ पर एक पार्क जैसी जगह हमको दिखाई देती है जो बीच से लगी हुई थी एंड यहाँ पर बेंचेस भी थी बैठने के लिए एंड समुद्र की लहरों का मज़ा लेते हुए, बातें करते हुए हमने काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और फिर यहाँ लंकावी में हमने देखी खाली खाली सी खूबसूरत रोड्स जो काफ़ी पीसफुल थी, ना नॉइज़ पॉल्यूशन था, ना एयर पॉल्यूशन था। बहुत ही फ्रेश एयर यहाँ पर देखने को मिली। वैसे लंकावी में ये हमारा पहला दिन था एंड रात भी नहीं हुई थी, शाम का टाइम था, लगभग 6-7 कुछ बज रहे थे एंड थोड़ा ये सब देखकर हम शॉक्ड तो थे कि इतना बड़ा पार्किंग एरिया है, इतनी सारी व्हीकल्स यहाँ पर पार्क्ड हैं एंड यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। इसके बाद चलते चलते हम आगे बढ़ते हैं इस मार्केट की तरफ, जो कि बहुत ही छोटा सा था एंड यहाँ पर हमें दिखा 7-Eleven। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप 7-Eleven से शॉपिंग करना प्रेफर करिएगा। शॉपिंग से मेरा मतलब है खाने पीने का सामान या फिर वाटर बॉटल्स, यहाँ पर काफ़ी सही रेट पर मिल जाती है। इसके बाद हमने ग्रैब ऐप को यूज़ करके कैब बुक करवाई एंड बढ़ते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। और रिजॉर्ट पहुंचकर हम आपको दिखाने वाले हैं लंकावी का सिनांग बीच। हेलो माय व्यूअर्स, वंस अगेन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद तो आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स लंकावी या मलेशिया जाना चाहते हैं, उन्हें आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली मलेशिया सीरीज़ के वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड यस, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी इस तरीके के और भी ट्रैवल ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आने की। और बातें करते करते इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। और यह है लंकावी का खूबसूरत सा सिनांग बीच। इट इज़ वन ऑफ लंकावीज पॉपुलर बीचेस। और इस खूबसूरत सी शाम के टाइम को हमने स्पेंड किया इस बीच के किनारे एंड यह बीच हमारे विला से भी डायरेक्टली दिखाई देता है, साथ ही सी वेव्स की भी आवाज़ आती है। सोचिए कितना अमेजिंग है ये एक्सपीरियंस, जहाँ सोते टाइम भी सी वेव्स की आवाज़ आए, सुबह उठते टाइम भी एंड ब्रेकफास्ट करते टाइम भी, हर टाइम। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।